اس بند اور تاریک سی گلی کے بیچوں بیچ کوئی باہمت شخص اور عباس کا غلام ہی اپنا گزارا کر سکتا ہے۔ غلط کہتے ہیں کہ ہنرمند آدمی کبھی بھوکا نہیں مرتا۔ تحصیل جڑوالا 127 مدنی پارک کا رہائشی غلام عباس زیست کی مشین کو گھما گھما کر بھوک کے دھاگوں میں الجھتا جا رہا ہے۔ لوگوں کے ننگے اجسام کو ڈھانپنے کا مکمل ہنر رکھنے کے باوجود بھی ایسے دھاگے کی تلاش میں ہے جو ان کی غربت کو رفع کر سکے۔ مگر اب وہ ہار چکا ہے۔ جی ہاں ناظرین، غلام عباس اب اپنی معذور بیٹی کو دیکھتا ہے تو تڑپ کر بکھر جاتا ہے، مگر کوئی غیبی صدا اس کی ہمت بندھاتی ہے اور شانوں سے ہلا کر سمجھاتی ہے کہ اٹھو اٹھو، تم ہار نہیں سکتے۔ تم عباس کے غلام اور ہیرا کے باپ ہو۔ ہیرا ان کی 5 سال کی بچی ہے جس کو مرگی کے دورے پڑنے کی وجہ سے باندھ کر رکھا جاتا ہے تاکہ کسی درندے کی نظر نہ پڑ جائے، کیونکہ اس کا نام زینب نہیں جو برداشت کر پائے۔ ہنڈیا میں ہر روز بھوک پکتی ہے، مگر ہیرا کا پیٹ دوائیوں سے بھرا نہ جائے تو وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگتی ہے، جسے غریب والدین کے دنوں رات سسکتے بلکتے گزر جاتے ہیں۔ اگر ان کے لیے ہر مہینے کوئی راشن کا بندوبست کر دے تو ہیرا کی دوائیوں پر خرچہ کرنا ان کے لیے زیادہ مشکل نہ ہوگا۔ کل دوپہر 3 بجے یہ ہماری رمضان نشریات کے مہمان ہوں گے۔ آئیں مل کر ان کا درد بانٹیں، آگے بڑھیے اور احمد نصیر فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجیے۔ آپ میں سے اگر ان کی کوئی مدد کرنا چاہتا ہے تو ہم سے دیے گئے نمبرز پر رابطہ کریں۔ ANF پر یقین کریں، آؤ مل کر تقسیم کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم وسلم۔ ناظرین محترم، پیغام رمضان کی خصوصی نشریات لے کر آپ کا میزبان احمد نصیر ایک مرتبہ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت میں دل گرفتہ ہوں اور اس گھر کی حالت دیکھ کر میرے جذبات مر گئے اور میرا دل خون کے آنسو رونے لگا۔ اس وقت ہم 127 مدنی پارک غلام عباس صاحب کے گھر موجود ہیں۔ غلام عباس صاحب ماضی میں ایک درزی ہوا کرتے تھے، باقاعدہ یہ ایک دکان پر کام کیا کرتے تھے جو دکان انہوں نے کرائے پر لے رکھی تھی، مگر بچی کے علاج معالجے پر جتنا بھی خرچہ ہوتا، چونکہ وہ دکان پر کام نہ کر پاتے تھے اور دکان پر وقت نہ دینے کے باعث دکان مالک نے انہیں دھکے دے کر دکان سے بے دخل کر دیا۔ اب یہ بیچارے گھر کے ہو کے رہ گئے۔ اب ان کے پاس ایک سلائی مشین ہے، یہ اس وقت قسمہ پرسی کے عالم میں موجود ہیں۔ حالات انتہائی دیگر گوں ہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ یہ ہٹا کٹا نوجوان اس طرح سے کیوں بیٹھا ہے؟ کیوں کوئی کام نہیں کر رہا؟ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال امڑ رہے ہوں گے کہ ہمیں کام کی ترغیب دینی چاہیے، مگر ہم یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو آپ کو بتاتا ہوں کہ آخر وجہ کیا ہے۔ تو ناظرین محترم، ان کی جانب بڑھتے ہیں۔ السلام علیکم۔ کیا حال ہے آپ کا؟ ٹھیک ہے، خیریت سے؟ اصل میں مجھ کو بتائیے غلام عباس بھائی کہ آپ ماشاءاللہ ہٹے کٹے ہیں، آپ کو کوئی کام کرنا چاہیے، آپ کے پاس ہنر ہے، کیا وجہ ہے کہ آپ کو دکان سے نکال دیا گیا اور آپ ہمیشہ کے لیے گھر کے ہو کے رہ گئے؟ آخر وجہ کیا ہے میرے بھائی، بتائیے۔ وجہ میری احمد بھائی یہ ہے، میری بیٹی جو 4 سال، ذرا ماسک آپ ذرا
जो 4 साल से ना बहुत ज़्यादा शिद्दत में बुखार में मुब्तला थी। अच्छा। जिसकी वजह से इसकी मेडिसिन, ये बेटी का हाल नाज़रीन आप देख रहे हैं, हमारा कैमरामैन दिखा रहा है आपको। तो जिसकी वजह से 3-4 साल हो चुके हैं जो मैं बहुत बेघर भी रहा हूँ 2 साल। अच्छा। बच्ची की वजह से मैंने घर का सामान तक बेच दिया। तो इसकी वजह ये एक कमरा कैमरामैन आपको दिखा रहा है, इस पर एक पंखा झूल रहा है। ये कमरा जो हवा भी बहुत मुश्किल से दे रहा है हमें, ये पंखा इस वक्त आप देख रहे हैं। इनकी जानी बढ़ते हैं, मैं ज़्यादा बातें नहीं करना चाहता, ना आपके और इनके दरमियान ज़्यादा हायल रहना चाहता हूँ। इनका मसला पूछते हैं। जी बताइए। तो बच्ची का बता रहा था मैं जी। तो इसकी वजह से मेडिसिन वगैरह या हॉस्पिटल में प्राइवेट सरकारी सब इलाज करवाया, जी। लेकिन वो अब भी नामुमकिन। अच्छा। जिसकी वजह से इसकी मेडिसिन जारी है। बच्ची का मसला क्या है? बच्ची को बीमारी क्या है? बच्ची को अब डॉक्टर ने बताया 6 माह हो गए कि मिर्गी का मसला है। अच्छा। 3-4 साल से इसे झटके लग रहे हैं, जिसकी वजह से अब मेडिसिन दे रहे हैं लेकिन आगे से ज़्यादा हो चुके हैं। अच्छा, तो किसी डॉक्टर ने इनका कोई इलाज किया या किसी डॉक्टर ने कोई रिकमेंड किया या आपको किसी ने कोई डॉक्टर मेडिसिन लिख के दी है, लेकिन वो भी अब बहुत मुश्किल से जा रही है। ज़ाहिर है कमाई नहीं हो रही तो मेडिसिन कहाँ से करेंगे आप? तो गुजारा कैसे हो रहा है घर का? बस जो हो रहा है वो थोड़ा बहुत जो चला रहे हैं। मेडिसिन कभी दे रहे हैं, कभी नहीं दे रहे, कभी होती है तब दे देते हैं, नहीं होती तो नहीं दे। बच्ची अपनी माँ के गोद में है, आप देख सकते हैं। मुर्गी के 14 चूजे भी हों तो वो अपने हर बच्चे को सीने से लगा कर रखती है, मगर ये वो माँ है जिसकी एक बेटी है। ये सारा दिन इस बेटी के पीछे पीछे रहती है, जिस तरह से मुर्गी अम्मा अपने चूजों के पीछे रहती है कि कहीं ये किसी बिल्ली के मुंह ना पड़ जाए या किसी आवारा कुत्ते के मुंह ना पड़ जाए। इस तरह से माँ इस बच्ची की देखभाल कर रही है। इनकी अम्मी से पूछते हैं कि किस तरह से गुजारा होता है। इस एक बेटी को 5 बेटियों की सी केयर चाहिए। इनकी अम्मी की जानी बढ़ते हैं और इनसे पूछते हैं कि आखिर किस तरह से वो घर को देख रही हैं, किस तरह से वो रसोई को देख रही हैं, किस तरह से वो घर का किचन चला रही हैं और किस तरह से फिर वो अपनी इस माजूर बच्ची की देखभाल कर रही हैं। इनकी जानी बढ़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी बहन, तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। बताइए मेरी बहन की क्या सूरत हाल है? बच्ची बेचारी माजूर है, किस तरह से आपने अपनी पूरी जिंदगी इस एक बच्ची पर वक्फ कर दी? लोग बातें भी करते होंगे कि भाई ये किसी को दे दी जाए, अपनी जिंदगी गुजारें। आप लोग बातें करने वाले करते हैं ना मेरे भाई कि भाई आप अपनी जिंदगी गुजारें, आप माशाल्लाह जवान हैं, मगर आपने इस अपनी बच्ची को कलेजे से लगा कर रखा। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जाहिर सी बात है, कलेजे से तो लगा के रखना ही पड़ेगा जी, क्योंकि बेटी है जी। रहमत है ना, रहमत। जी बिल्कुल, सारा दिन इसी को दिया जाता है। तो अच्छा बहन, मुझको ये बताइए कि राशन का सिलसिला क्या है? क्योंकि भाई तो काम नहीं कर रहे और बच्चों का ज़ाहिर पेट भी पालना है, भूख भी लगती है बच्चों को, किस तरह से गुजारा होता है मुझको बताइए। बहुत मुश्किल है, यहाँ तक कि बताना भी मुश्किल है। इतना घर में नहीं है कुछ के मैं बता सकूं कि घर के क्या हालात हैं। और ये एक कमरा है जिसमें हम बैठे हैं, ये बस आपका कमरा है? जी यही बस आपका कमरा है। नाज़रीन मोहतरम, मैं आपको बताऊं कि मैं इस वक्त आपसे मुखातिब हूँ, अहमद नसीर इस वक्त आपसे मुखातिब है और मेरा मुखातिब होना आपसे बनता भी है कि ये लोग इस वक्त कसम पुरसी के आलम में मौजूद हैं, मगर हम रमज़ान अपनी बीवियों के साथ लिहाफ ओढ़ कर एसी तले आराम से लंबी तान कर सो रहे हैं। हमें अब जागने की जरूरत है नाज़रीन मोहतरम। इनसे ज्यादा सवालात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि वो इस कदर मजबूर हैं और वो उनके जज्बात जो हैं वो मर चुके हैं, उनके आंसू खत्म हो चुके हैं। वो किस मुंह से बात करें, कैसी भीगी आंखों से बात करें, वो बात करने से कासिर हैं। मैं आपसे इस वक्त मुखातिब हूँ। अच्छा, मैं बस आपसे एक सवाल करूँ। जाहिर है अब तो चूँकि रमज़ान है, अल्हम्दुलिल्लाह अहमद नसीर फाउंडेशन की जानिब से आपको राशन बैग तो मिल जाएगा इंशाल्लाह, मगर चूँकि रमज़ान के बाद भी आपके यही हालात हैं, बच्ची की दवाइयों पर भी खर्चे होंगे और राशन भी ज़ाहिर ज़रूरत होगी। अच्छा, मुझको आप ये बताइए कि अभी आपको फिल वक्त थोड़ा बहुत तो आप काम करते होंगे, थोड़ा बहुत तो काम आता होगा, दोस्त अहबाब आपसे ताउन करते होंगे। मुझे ये बताइए कि अभी सरदस्त आपको हर महीने के राशन की ज़रूरत है या आपको बच्ची की अद्वियात की ज़रूरत है? ये बताइए ताकि हम आवाम से अपील करें। हमारे आवाम जो है वो बहुत अच्छे हैं, बड़ा प्यार करने वाले हैं, बहुत मोहब्बत, बड़ा एहसास रखने वाले हैं, गरीबों का, मुस्तकीन का बड़ा एहसास रखने वाले हैं। आप बताइए ताकि हम अपील की जानी बढ़िए। देखिए, पेट का भरना भी ज़रूरी है। जी जी मेरी बहन, हम यही भी ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं बच्ची का इलाज।
जी 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 तो जी फिर आपको क्या लगता है आप दोनों जरूरी है ना? ये बहुत जरूरी है। मैं ये चाहता हूँ कि बच्ची भी उस वक्त तक जिंदा रहेगी जब तक पेट में कुछ होगा। जी ऐसा दवाई भी खाना खा के दी जाती है, समझ रहे हैं बात को गुलाम अब्बास भाई? दवाई दी जाती है खाना खाकर। पेट भरा ना हो तो डॉक्टर दवाई नहीं देता मेरे भाई, तो पेट भरना जरूरी है। तो फिर इसीलिए कह रही हूँ ना, दोनों जरूरी है। पहले पेट भरे फिर दवाई। पहले हम आवाम से, जो बड़े प्यारे आवाम है जो हमको देख रहे हैं, उनसे हम राशन की अपील करें। अगर आपको हर महीने का राशन कोई डाल दे या हर महीने का राशन आपके घर पहुंच जाया करे तो आप खुश हैं इसमें? आप इसमें खुश हैं? खुशी नहीं, बहुत ज्यादा खुश हूँ। बहुत ज्यादा खुश हूँ। जी। मैं इस वक्त तमाम शहर से मुखातिब हूँ, मैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान से मुखातिब हूँ। मैं आपसे हाथ जोड़कर दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि ऐसे घरों की मदद कीजिए जो घर से बेघर हो चुके हैं। ऐसे लोगों की मदद को निकलते हैं जो इस वक्त खुद को माशरे का नाकारा फर्द समझते हैं, इनके लिए निकलते हैं। मैं आप तमाम लोगों से अपील करता हूँ और दर्दमंदाना अपील करता हूँ कि इन लोगों को राशन की ज़रूरत है। रमज़ान के हवाले से अहमद नसीर फाउंडेशन के ज़रिए एहतमाम इंशाल्लाह इनके घर राशन बैग पहुँच जाएगा इंशाल्लाह। मगर ये लोग कह रहे हैं कि हर महीने इनको राशन की ज़रूरत है, हर महीने। अगर हर महीने कोई अल्लाह का ऐसा नेक शख्स है कि हर महीने इनके घर में राशन डलवा दिया करे, तो मैं अहमद नसीर हाथ जोड़कर अपील करता हूँ तमाम ही पाकिस्तान से कि है कोई ऐसा शख्स जो हमारी फरियाद सुन रहा है। इस बच्ची का ख्याल कीजिए। ये बच्ची आप देख रहे हैं, कैमरामैन आपको दिखा रहे हैं। मैं ना जाने वादे मुज़ाफ़ात में भटक जाऊं, मेरे पास अल्फाज नहीं, मैं ना जाने मुझसे ये नहीं हो रहा, मैं ये संभाल नहीं पा रहा इस प्रोग्राम को, ये पैगाम नेकी को मैं नहीं कर पा रहा। मगर मैं आपसे अपील करता हूँ कि अल्लाह का कोई नेक बंदा उठे, उठे, अल्लाह का कोई नेक बंदा उठे। मैं तमाम लोगों से इस वक्त अपील कर रहा हूँ कि अल्लाह के लिए अल्लाह का कोई नेक बंदा उठे, अपनी आखिरत संवारिए। इन बच्चों के लिए, इस बच्ची के लिए, कम अज कम इस बच्ची के लिए उस वक्त तक राशन इस घर में डलवाता रहे जब तक ये बच्ची सेहतयाब नहीं हो जाती। इसकी जगह हमारी और आपकी बच्ची भी हो सकती थी। आप इस बच्ची को अपनी बच्ची की नजर से देखिए। खुदारा मैं आप लोगों से अपील कर रहा हूं, अहमद नसीर हाथ जोड़कर आप लोगों से दर्दमंदाना अपील कर रहा है कि है कोई जो लोगों का दर्द महसूस करे और इनके लिए आन खड़ा हो। मैं इस घर के हक में आवाज बुलंद कर रहा हूं। मैं आपसे अपील करता हूं कि अगर कोई शख्स है तो खुदारा 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 मैं हाथ जोड़कर अपील करता हूं कि वो सामने आए। ये मेरे बंधे हाथों की लाज रखिए, वो शख्स सामने आए जो इस घर का हर महीने का राशन जो डलवा दिया करे, वो शख्स सामने आए। मैं अहमद नसीर आपसे एक मरतबा फिर से अपील कर रहा हूं कि वो शख्स सामने आए। खुदारा खुदारा हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर स्क्रीन पर चल रहा है, हमें कॉल कीजिए। हमारा नंबर आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं 0335-784-2223 यानी 0337-784-2223। ये अहमद नसीर फाउंडेशन का नंबर है। आप हमसे राबिता करें, इंशाल्लाह आपकी कॉल को लिया जाएगा। और इस वक्त पूरा पाकिस्तान आपको सुन रहे। खुदारा खुदारा खुदारा, अगर आप अपना नाम नहीं बताना चाहते तो आपका नाम सिगाए राज में रखा जाएगा। आप इस घर के लिए उठें, इस घर के लिए उठें। आप इनको हर महीने राशन की जरूरत है। उनके हालात आप देख चुके। एक सिलाई मशीन है, एक सिलाई मशीन है, आप इस वक्त कैमरे में देख रहे हैं, एक सिलाई मशीन है। आप तमाम ही लोगों से दर्दमंदाना अपील कर रहा हूं। अहमद नसीर इस वक्त आपसे मुखातिब है और अपील कर रहा है कि इस माजूर बच्ची के लिए अगर कोई अल्लाह का नेक शख्स उठना चाहता है तो वो उठे। और स्क्रीन पर हमारा नंबर चल रहा है, हमें कॉल करें। फ़कत इनका यही मुतालिबा है और फ़कत जो इनकी इस वक्त ज़रूरत है वो सरे-दस्त राशन की ज़रूरत है। अगर हर महीने इनके घर कोई इन बच्चों के लिए कोई राशन डलवा दिया करे, सब यहीं पर रह जाएगा। दुनिया का माल है, दुनिया में रह जाएगा। दुनिया आखिरत की खेती है, हमें सदका देना है। सदका देकर, चूंकि सदका हमारा दुश्मन है, अगर हम इस दुश्मन को अपना दोस्त बनाना चाहते हैं तो इसे अदा करना होगा। तो आइए इसको दुश्मन नहीं अपना दोस्त बनाते हैं। ये जिसका बनता है उसको दे दें। इस माजूर बच्ची के लिए हम अपील कर रहे हैं जो बेचारी अपनी टांगों पर खड़ी भी नहीं हो सकती, जो बेचारी बैठ भी नहीं सकती, और बैठना बड़ी बात है, जो बेचारी लेट भी नहीं सकती। उसके अम्मी अब्बा ने उसको पकड़ा वो लेटी हुई है। कोई है अल्लाह का नेक बंदा जो उठे। जी, एक कॉलर मौजूद है हमारे साथ।
अस्सलाम वालेकुम अहमद नसीर भाई। जी वालेकुम कैसे हैं? अस्सलाम। ठीक हैं जी फरमाइए साहब। यार ये जो आपने, हाँ जी, फरमाइए, कौन मलक और कहाँ से? शहबाज बात कर रहा हूँ भैया। मैं आपका ये प्रोग्राम देख रहा था तो जी, पहले नंबर पे जी। तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है। आप इस तरह के गरीब लोगों के घरों में जा रहे हैं, ताकि लोग अमीर लोगों जी, के बड़ी घरों में तो मेहरबानी। सभी जाते हैं। तो यार इन लोगों जी, के आप घर के बतलाइए हालात क्या देख के करना ना चाहते हैं इन घर मेरे वालों से के? बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो जी। बाकी आप इन घर वालों का जो है ना एड्रेस मुझे बता दें और मैं इनको महीने बाद जी। राशन भेज दिया करूँगा। आपकी जो ये काविश है अल्लाह ताला इसमें आपको कामयाब करे। अरे नहीं अरे अहमद भाई, सुभान हम इनको सुभान ना अल्लाह। हर महीने बाद भेज दिया करेंगे। इनके राशन की अल्लाह के फजल करम से अब, हाँ जी, आपको टेंशन नहीं है। यानी सुन लीजिए, सुन बाकी हम लीजिए, इनको हर monthly महीने का भेज राशन। दिया करेंगे। हाँ जी, अरे कंप्लीट वाह भाई राशन। वाह, वाह 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 और वाह बहुत वाह। कम लोग हैं जो इस तरह के गरीब लोगों का दर्द। सलामत। ले भाई, आपके राशन का अल्हम्दुलिल्लाह हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह आपके राशन का हो गया। हर महीने आपको राशन आ जाया करेगा, हर महीने आपको राशन मिल जाया करेगा। आप खुश हैं? खुश हैं आप? हर महीने इंशाल्लाह आपको राशन आपके घर पे आया करेगा। क्या क्या जज्बात है आपके? नसीर भाई आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारी आवाज़ बने। अरे नहीं 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 नहीं, ये तो हमारा हक है, हमारा बनता था। हम तो अल्हम्दुलिल्लाह हर उस घर की आवाज़ बनते हैं जो मुस्तहिक है। बहुत शुक्रिया आपका। नहीं नहीं, शुक्रिया की कोई बात नहीं। जी मेरी बहन, आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह राशन का चूँकि हो गया, राशन का हमारे भाई ने कर दिया, हर महीने आपके घर राशन का जो बैग है वो पहुँच जाया करेगा। क्या कहना चाहेंगे चूँकि राशन का हो गया? मेरी बहन बहुत ज़्यादा शुक्रिया करना चाहते हैं हम। तो जितना भी शुक्र अदा करें अल्लाह का बहुत कम है। जाहिर लेकिन है। उसके बाद आप हमारी आवाज़ नहीं नहीं नहीं, ये अल्लाह तो वसीले बनाते हैं, अल्लाह तो वसीले लेकिन जो बनाते भी हुआ है ये आपकी वजह से। अरे नहीं नहीं नहीं, ये आप इस चीज़ का, इस काम का वसीला बने हैं। नहीं नहीं नहीं, आप बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहिए, बहुत खुश रहिए। और भाभी को खुश रखिए। आप भाभी को लड़ाई झगड़ा तो नहीं करते आपसे? पक्की बात, प्यार मोहब्बत करते हैं। भाभी को खुश रखिए। हाँ मेरे भाई, भाभी को खुश रखिए। इसी के साथ अपने मेज़बान मुस्कुराहटें बिखेरिए जनाब, मुस्कुराहटें बिखेरिए। ये बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है जिसमें हम आए। ये दुनिया बहुत मुख्तसर सी है। मौला अली करमल वजहुल करीम ने अपनी ज़िंदगी में दुनिया को 3 तलाक़ें दिए। भाई दुनिया कुछ नहीं है, दुनिया आखिरत की खेती है। यहाँ जो आप बोदोगे वही काटोगे, जो बोना है वही काटना है, जो करना है वही पाना है। इसी के साथ अपने मेज़बान अहमद नसीर को इजाज़त दीजिए। और अगर हमारी टीम का अहमद नसीर फाउंडेशन का हिस्सा बनना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर हमसे राबिता करें। अल्लाह हाफ़िज़।